Hi everyone, welcome to my sports study YouTube channel. Myself Chandan Rana. I am a professional physical education teacher of a CBSE school. So I am very beginner in this platform. Please keep supporting me. In these YouTube channels, I will try to cover all the syllabus of physical education in CBSE, and I will also explain the different type of games like individual games and the team games in this platform. So this is the first unit of class 12 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो आज हम प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के बारे में जानेंगे। क्या है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स? हम सबको पता है कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स आज के दिन में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। सो मेनी स्टूडेंट्स आर showing their interest in the different field of sports like football, cricket, basketball, whatever। ये जो स्टूडेंट की इंटरेस्ट है डिफरेंट स्पोर्ट्स, इसी इंटरेस्ट को काम में लगा के हमें स्टूडेंट की या चाइल्ड की हारमोनियस डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट इम्प्रूव करना है। इसके लिए चाहिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग। विदाउट ए प्रॉपर प्लानिंग वी कांट अचीव आवर गोल। We know that it is a very complicated task, but if we make a proper plan, so we can achieve this target easily। तो आज हम सिर्फ दो ही टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, एंड द सेकेंड इज वेरियस कमिटीज एंड इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज। सो फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ प्लानिंग। What is the appropriate meanings of planning? Now, here we will try to understand the meaning of planning. The first is planning is the process of deciding in advance what is to be done, how and where it is to be done, who is to do it, and how the result are to be evaluated. Now the next is planning is a basic and fundamental functions of management, and all the other functions of management are influenced by the planning process. Now I have mentioned one more meaning of planning. Now according to Mitchell, planning is usually interpreted as a process to develop a strategy to achieve desired objective, to solve problems, and to facilitate action. Okay, so different steps we are taking in the planning process. So what we have performed in this planning program, just look at these pictures। तो चलिए इस बार हम इस पिक्चर को देख के प्लानिंग के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जब हम इस पिक्चर को गौर से देखते हैं तब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क रिलेटेड वर्ड दिया गया है। ओके, वेयर, व्हेन, व्हाट, हु, व्हाई। सो जब एक कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में कौन कौन सी टीम पार्टिसिपेट करेंगे, टीम कहाँ से आएंगे, ओके, कौन मैनेजमेंट करेंगे, स्टाफिंग कौन करेंगे, ऑफिशियल कौन रहेगा, कौन सी ग्राउंड में मैच होगा, ये सारे चीज़ हम प्लानिंग में ही डिसाइड कर लेते हैं। इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वी नीड ए बेटर प्लान, वी नीड ए ग्रेट प्लान। Otherwise, we can't perform, we can't organize the competitions. Without a planning, we can't perform a single task. Now, the next is sports planning or planning in physical education. So basically, there have two type of planning in physical education or sports. So the first is plan for sports tournament, and the second is plan for sports training. In these classifications, we need to make a plan for knockout tournament, league tournament, combination tournament, and challenge tournament. So you have to make a proper plan for all those tournament. How to manage, how to organize, how to control this kind of competitions. Now the next is plan for sports training. So here we have to make a proper plan for an individual sports persons, how they can improve their performance. And the first is macro cycle, and then mesocycle, and then microcycle. The durations of macro cycles is for 6 months to 12 months.
That's why we are saying annual plan. This is also called annual plan. And the second is mesocycle. So the durations of this mesocycles is 3 to 4 week. Okay, the durations of this mesocycles is 3 to 4 week. And last is the microcycles. The durations of the cycles is 1 week to 10 day. ओके, हमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए प्लान की ज़रूरत क्यों होता है? क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है, जो स्पोर्ट्स पर्सन, उसकी परफॉर्मेंस को हाई लेवल पे ले जाने के लिए हमें ये 3 पैटर्न्स, ये 3 ट्रेनिंग प्लान यूज़ करना पड़ता है, जो सिस्टमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस को और भी हाई लेवल पे पहुंचाने के लिए मदद करता है। और इसी वजह से हमें स्पोर्ट्स पर्सन की एबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करके ट्रेनिंग प्लान या स्पोर्ट्स प्रोग्राम बनाना पड़ता है। नाउ वी विल एक्सप्लेन अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। सो फर्स्ट इज टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर्स ऑफ इमीडिएसी। जब हमें कोई कंपटीशंस करते हैं, जब हमारे पास उस कंपटीशन को करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं होता है, तब हमें बहुत सारे काम इमीडिएटली करना पड़ता है। इमीडिएटली मतलब सडन, और इसी वजह से वो काम जो है इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली नहीं होता है, मतलब प्रॉपर नहीं होता है, जिसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। अगर हमारे पास एक अच्छे और बेहतरीन प्लान होगा तो ये सारे प्रॉब्लम ऑल ऑफ सडन या जो कोई भी काम हमें 11th आवर में करना नहीं पड़ेगा। So that's why we have to make a proper plan for the competitions. Now the next is to keep good controls over all the activities. एक proper planning, एक बेहतरीन प्लानिंग कंपटीशन में जितने सारे एक्टिविटीज़ होता है, उस सब एक्टिविटीज़ को एक बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। जैसे एक कंपटीशन के लिए हम बहुत सारे कमिटीज़ बनाते हैं एंड उसके बाद हम उस कमिटी को डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, और इसके वजह से ओवरलैपिंग की चांसेस कम रहता है या मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाता है, और सब कोई अपना काम अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशंस। जब एक कंपटीशंस ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है तब बहुत सारे मैन पावर की ज़रूरत होता है। ओके, बहुत सारे पर्सन्स की ज़रूरत होता है, तो वो पर्सन्स सबके बीच एक कोऑर्डिनेशंस, एक अंडरस्टैंडिंग रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ता है, जिस प्लान के वजह से एक दूसरे के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशंस बना रहे। So next we have one more important points to reduce the chances of mistake. Okay, so this is possible if we have proper plan, if we have strong plan, if we have proper blueprint for these competitions or tournaments, we have less chances of mistake. Now the next point is to increase the efficiency. So this point for the professional persons like officials and the various responsible persons. A proper planning, a good plan, a effective plan have increased the efficiency of sports official. As we all know that जब a sports official कोई भी मैच जब कंडक्ट कराता है तब उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी रहता है। प्रॉपर प्लान की वजह से वो अपना जिम्मेदारी सही तरीके से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म करता है। नाउ द नेक्स्ट इज टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी। ए प्रॉपर प्लान हैव इंक्रीज द क्रिएटिविटीज ऑफ ए ऑफिशियल, स्पोर्ट्स पर्सन एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर। किस तरीके से एक स्टूडेंट की और एक स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को इन्हेंस किया जाए, बढ़ाया जाए, उसको लेके टीचर्स
एंड कोचेस के दिमाग में बहुत सारे क्रिएटिव आइडिया आते रहते हैं। तो इस क्रिएटिव आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रॉपर, एक बेहतरीन प्लान की ज़रूरत होता है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज टू इनहेंस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। एक स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान की ज़रूरत होता है। वो ट्रेनिंग प्लान कौन कौन सी है? मैक्रो साइकिल, मेसो साइकिल एंड माइक्रो साइकिल। Without a proper training plan, we cannot enhance the performance of a sports person. So that's why when we have tried to improve the performance, when you have tried to enhance the sports performance of a particular sports person, so this times you have to use a proper training plan. Now here we will try to understand about the committees and their responsibilities. So at first, committees for publicity. So जब एक कंपटीशंस किया जाता है या टूर्नामेंट करवाया जाता है तब उसको पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट पब्लिसिटी कंपटीशंस का इंटरेस्ट जो है वो सही अंजाम तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए इस कमेटी में जो पर्सन्स है, जो मेंबर है, उसको सही तरह से पब्लिसिटी करना है। पब्लिसिटी कौन कौन सी चीज़ की करेंगे? एक तो क्या है, गेम के बारे में मतलब कौन कौन सी इवेंट खेलाया जाएगा, कौन कौन सी डेट में कौन कौन सी इवेंट होगा, ये इंफॉर्मेशंस, ये इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर तरीके से पब्लिश करना है। प्रॉपर तरीके से बैनर या पोस्टर बनाना है, प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना है। ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो पब्लिसिटीज कमेटी के ऊपर आता है। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट्स कमेटी। जब एक कंपटीशंस ऑर्गेनाइजिंग होता है तो उस टाइम बहुत सारे टीम जो है आउट ऑफ स्टेशन से आता है, तो इसीलिए उसको सही जगह से पिक करना और अपने होटल तक छोड़ना, उसके बाद जिस ग्राउंड पे मैच खेला जा रहा है उस होटल से उस ग्राउंड तक लेके जाना, लेके आना, ये पूरा ट्रांसपोर्ट्स कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। नाउ द नेक्स्ट इज बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। सो बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहता है, क्योंकि कंपटीशन के दौरान बहुत सारे ऑफिशियल, प्लेयर एंड अलग अलग मेंबर जो है उसको उसकी रहने की जगह, उसकी खाने के लिए मील प्रोवाइड करना, पूरे की पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी के अंदर आता है। नाउ द नेक्स्ट इज डेकोरेशंस एंड सेरेमनीज कमेटी। तो इस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इस कमेटी में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल टास्क भी है। जैसे आपका जो मंच या स्टेज जो है उसको सही तरह से डेकोरेशंस करना है, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मतलब टूर्नामेंट से रिलेटेड जितने सारे सर्टिफिकेट या मेडल रहेंगे उसका सही तरीके से अरेंजमेंट करके रखना भी इस कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। नाउ द नेक्स्ट इज ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स कमिटीज़। तो इस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि इस कमेटी में आपको प्रॉपर तरीके से एक ग्राउंड या प्ले फील्ड बना के देना पड़ता है। उसका मेजरमेंट भी सही तरीके से होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड लेवल की होना चाहिए। और उसके साथ साथ जब हम एक ट्रैक बनाते हैं, 400 मीटर की ट्रैक बनाते हैं, तो उसका प्रॉपर लेआउट, प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट, प्रॉपर एंडिंग पॉइंट सही तरह से बना होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो एसेंशियल इक्विपमेंट है फॉर द पर्टिकुलर गेम, जब हम ट्रैक एंड फील्ड की बात करते हैं तो उस टाइम बहुत सारे एसेंशियल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होता है। जैसे हर्डल रन के लिए हर्डल और जैवलिन, शॉट पुट, डिस्कस, ये सारे एसेंशियल मटेरियल्स आपको प्रॉपर जगह पे होना चाहिए और प्रॉपर टाइम पे भी होना चाहिए। मतलब मैच के पहले आपको वो सारे चीज़ें अरेंजमेंट करके रखना है। द नेक्स्ट इज रिसेप्शन कमिटी। सो रिसेप्शन कमिटी की मेन काम ये है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी में जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन लाइक चीफ गेस्ट और अदर इम्पोर्टेंट मे बी द स्पोर्ट्स पर्सन्स और द डिफरेंट
टीम मैनेजर, दे हैव टू वेलकम देम। ओके, सो ये सारे काम जो है वो रिसेप्शन कमिटी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट इज कमिटीज़ फॉर ऑफिशियल। सो इस कमिटी में ध्यान रखना है एक मैच के लिए कितने ऑफिशियल्स की ज़रूरत होता है, कौन कौन सी ऑफिशियल्स की ज़रूरत होता है। जैसे रेफरी चाहिए, आपका स्कोरर चाहिए, ओके, टाइम कीपर चाहिए। सो कितने सारे ऑफिशियल्स की ज़रूरत होता है और कितने सारे ऑफिशियल्स चाहिए, इसकी पूरे कैलकुलेशंस इस कमिटी रखेंगे। और उसके साथ साथ जो रेफरी या जो अंपायर या जो ऑफिशियल वो सिलेक्ट करेंगे उसका रेपुटेशन सही हो, मतलब उसका जो डिसीशंस में क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, बिलीव ज़्यादा होना चाहिए, उसका जो एबिलिटी है, जो अंपायर या जो रेफरी कंपटीशंस करवाने के लिए आएंगे उसका प्रोफेशनलिज्म बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए हमें एक प्रोफेशनल ऑफिशियल्स की ज़रूरत होता है। ओके, और इस प्रोफेशनल्स दर्जे की ऑफिशियल्स को अवेलेबल कराना इस कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। नाउ द नेक्स्ट इज फास्टेड कमिटीज़। एक हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर को आपको इस कमिटी में रखना है कि स्पोर्ट्स एंड इंजरीज आर को रिलेटेड। ओके, सो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऑल दिस मेडिकल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय दिस कमिटी। All the medical facilities are provided by the first aid committees. The next is announcement committee. इस कमिटी की मेन काम जो है कौन कौन सी गेम कहाँ पे होगा, कौन कौन सी ऑफिशियल इस गेम को कंडक्ट कराएंगे, इसके बारे में कंटिन्यूसली अनाउंस करते जाएंगे। और उसके साथ साथ जो कल्चरल प्रोग्राम ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी में किया जाएगा तो उसका भी अनाउंसमेंट इस अनाउंसमेंट कमेटी से ही किया जाएगा। कोई भी गेम की कमेंट्री भी किया जा सकता है इस कमेटी के दौरान। नाउ द नेक्स्ट इज रिफ्रेशमेंट्स एंड इंटरटेनमेंट कमेटी। तो इस कमेटी के मेन काम ये है गेम जब चलते हैं तो उसके दौरान जो स्पोर्ट्स पर्सन्स या ऑफिशियल्स है उसको सही तरीके से रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करना, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स या juice type of drinks should be provided by this committee. This committees also make some arrangement for entertainment programs at the opening ceremony and closing ceremony of the sports event. So alright students, if you think that this video will help you, just like this video and do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for next update.